केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन योर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखा हाउ थॉमसन्स मॉडल वाज चैलेंज्ड बाय रदरफोर्ड। देन रदरफोर्ड कैरिड आउट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस जो थी they were not in accordance with Thomson's model. So Thomson's model was failed. Then up to many years, at least for the 30 years, Rutherford's model was continuously accepted. Everybody was working on it. Research was still carried on. Then there were certain other observations regarding nature of light, because sunlight was the main focus, because it was containing a special type of spectra, that is of hydrogen gas, because sun is a source of hydrogen gas, burning of hydrogen gas. So spectra of hydrogen, it was having 5 type of bands, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। अलग अलग बैंड के अंदर आपने अलग अलग सीरीज पिछले लेक्चर में देखी होंगी, बाल्मर, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्टर्न, फंड, ब्रैकेट। लाइट के डिफरेंट जो हमारे पास रेंज रहती है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, उसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया है, और वहीं से हमें पता चला कि अलग अलग बैंड्स आ रहे हैं। उनको उन साइंटिस्ट के नाम पे ही नाम रख दिया गया। देन ड्यूल नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे दैट लाइट इज हैविंग वेव कैरेक्टर, लाइक अ वेव, इट इज हैविंग क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग। देयर वर सर्टेन अदर एक्सपेरिमेंट्स like black body radiation, photoelectric effect, line spectra, as I was discussing just now. तो ये सपोर्ट करते थे उसके पार्टिकल नेचर को। तो अब साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे थे इसके ऊपर, और प्लैंक्स ने एक थ्योरी दे दी। जो वेव नेचर है लाइट की, वो कहता है दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस लाइक अ वेव, ये रास्ते में टूटती नहीं है, इट इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। बट प्लैंक ने कहा it is emitted in packets, small packets of light, और उस पैकेट को उसने नाम दिया था photon, and with this concept he was able to explain photoelectric effect as well as black body radiation successfully. Now line spectra, that was also indicating towards a certain type of particle nature. So Planck, he supported that energy of a photon, it is equal to h nu, frequency of light. Energy is directly proportional to frequency of light. Okay, now after these observations there was a question mark on Rutherford's scattering experiment and the observations, the generalization which he has given for the atom. So Bohr, he was also following Planck's, and after studying the Planck's theory, he was able to give a new guidelines for atomic structure of atom. So he studied that according to wave theory, now this is nucleus. Nucleus is positively charged, and according to Rutherford, electron, it is revolving around the nucleus in extra nuclear portion. ये आप लोग पढ़ चुके हैं, right? And this is called orbit. Okay. Now, according to classical theory, whenever a negative charge is revolving around a positive charge, these are two electrostatic charges according to laws of electrostatic. Whenever a negative charge is revolving around a positive charge, there will be, now
when electron is revolving, it is changing its direction. पहले यहां था, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया. देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. It is changing its direction. Means it is undergoing acceleration. It is being accelerated. It is being accelerated. Okay. Now when it is being accelerated while revolving around the nucleus, nucleus के around revolve करते हुए ये इसको acceleration मिल रही है. Then एक opposite charge के around जब ये charge घूम रहा है, ये positive और ये negative, there will be emission of energy. There will be loss of energy. Every step के ऊपर there will be loss of energy. It means ये तो रदरफोर्ड का था कि इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के अराउंड घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हर सर्कल के साथ इलेक्ट्रॉन यहां था. With every circle there will be loss of energy. It will emit energy and ultimately ये जो सर्कल है ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए. ये जो थ्योरीज हम पीछे पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से तो इस तरीके से होना चाहिए कि स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, समा जाएगा, खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं. अगर ये ऐसा हो जाता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कल काटते काटते, क्योंकि ये तो श्योर है कि जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में मूवमेंट करते हैं, एक फिक्स रख लिया और दूसरा उसके अराउंड घूम रहा है, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी. तो उस हिसाब से स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इसको इसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. देन व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क. इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. सो दिस थ्योरी वॉज फेल्ड. एक रीजन तो ये था. ठीक है. दूसरा, वो जो लाइन स्पेक्ट्रा आया था हाइड्रोजन का, line spectra of hydrogen atom, Rutherford was not able to explain that 5 different series obtained in spectra of hydrogen. So these two question marks to the Rutherford's model of an atom, they were quite enough to get it rejected. So Bohr came up with new points for एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो उसके हिसाब से, बोहर के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहली बात, जो पॉइंट्स वो पीछे कहकर आया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके हिसाब से अब ये जितना भी मॉडल है ना बोहर का, एक चीज इसको ध्यान रखना, ये मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है. ये किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. मींस जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा. तो इसके हिसाब से इसने कहा दैट इन एन हाइड्रोजन एटम electron revolve around the nucleus in circular path having fixed radius and fixed energy. It was the main point that दिस इज न्यूक्लियस, ये रही सर्कुलर पाथ जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. बोला इसने भी इसको ऑर्बिट ही, रदरफोर्ड ने भी ऑर्बिट बोला था, इसने भी ऑर्बिट बोला, लेकिन चेंज क्या आया? रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला था कि फिक्स्ड है, उसने बोला उसके अराउंड घूमते हैं. ठीक है, सर्कुलरी उसके अराउंड वो घूमते हैं. तो बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ये रहा न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, बट दैट सर्कुलर पाथ इज फिक्स्ड। अब ये फर्स्ट सर्कल, ये लीजिए सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। यहां सेंटर से यहां तक एक रेडियस R1, यहां से सेकंड रेडियस R2, यहां से थर्ड रेडियस R3। ये भी फिक्स है। ये पूरे सर्कल का सेम रेडियस होगा, सेकंड सर्कल का सेम रेडियस होगा, थर्ड सर्कल का सेम रेडियस होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसको उसने बोल दिया दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पाथ। ये अपनी जगह पे फिक्स हैं क्योंकि फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी, तो दीज ऑर्बिट्स दे वर कॉल्ड स्टेशनरी पाथ। दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं दे आर नोन एज स्टेशनरी पाथ। ओके, अब देखें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप नहीं कर सकता, ये सेकंड वाला थर्ड में जंप नहीं कर सकता, फर्स्ट वाला थर्ड में जंप नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। तो ये जो इसका स्टेशनरी पाथ या स्टेशनरी स्टेट, ये इसकी ये तो पाथ तो है जो फॉलो करेगा, और ये उसके लिए स्टेशनरी स्टेट कि ये थर्ड शेल में ही रहेगा तो उसकी स्टेशनरी स्टेट आई थर्ड शेल, फर्स्ट में रह रहा है तो उसकी स्टेशनरी स्टेट आई फर्स्ट शेल। ठीक है। जब तक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी ना मिले ये यहां से यहां जंप नहीं कर सकता। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूं इसके थर्ड पॉइंट को। ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ठीक है। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आपको पता है छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, फर्स्ट शेल को आप बोलते हो के शेल, एल, एम, एन एंड सो ऑन। अब ये जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी है E1, सेकेंड शेल की एनर्जी है E2, थर्ड शेल की है E4, फोर्थ शेल की है, थर्ड की है E3 एंड फोर्थ की है E4। ठीक है। अब इसी तरीके से ये फर्स्ट शेल E1, सेकेंड शेल E2, थर्ड शेल E3, फोर्थ शेल E4। मैं ऐसे ब्रैकेट में ले लेती हूं। अब जो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में प्रेजेंट है वो अपने आप से अपनी शेल को छोड़कर किसी दूसरी शेल के अंदर नहीं जा सकता। कि मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां से अगर इसको यहां जंप करना है तो इतनी एनर्जी इसको मिलेगी तभी जंप कर सकता है। ठीक है। तो अगर ये रहा फर्स्ट शेल, के शेल, तो उसकी एनर्जी किसके बराबर है? E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमेशा आपको पता है NH न्यू के बराबर होती है, E इज इक्वल टू NH न्यू। तो E1 H न्यू, सेकेंड शेल L शेल तो कितनी होगी? E2 2H न्यू, थर्ड शेल M शेल इसकी कितनी होगी? E3 3H न्यू, फोर्थ शेल E4 तो इट विल बी 4H न्यू। ठीक है। अब अगर इसको यहां से यहां जाना है, अगर इसको फर्स्ट शेल से जाना है सेकेंड में, इसकी एनर्जी है EH न्यू, इसकी है एनर्जी 2H न्यू। दोनों में डिफरेंस कितना आया? E2 E1 डेल्टा E, E2 माइनस E1 2H न्यू माइनस 1H न्यू। कितना आया इन दोनों में डिफरेंस? H न्यू डेल्टा E। मतलब कहने का कि अगर इसको फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो इसको कितनी एनर्जी की रेडिएशन स्ट्राइक करनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए E इज इक्वल टू NH न्यू, उसकी एनर्जी होनी चाहिए E इक्वल टू NH न्यू। ये बाहर से लाइट इसके ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। अब ये जो लोअर स्टेट है
लोअर स्टेट और जो स्टेशनरी स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, स्टेशनरी स्टेट, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और जो जंप करके हायर स्टेट में गया आफ्टर जंप, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, इसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो किस स्टेट तक जाएगा? अब देखिए, अगर इसको फर्स्ट से थर्ड को जाना है तो दिस इज E1 इज इक्वल टू एच न्यू एंड E3 इट इज 3h न्यू। तो दोनों में डेल्टा E कितना आना चाहिए? 3h न्यू माइनस h न्यू, कितना होना चाहिए? 2h न्यू। मींस अगर यहां पे रेडिएशन टकरा जाती है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इलेक्ट्रॉन को इस रेडिएशन की एनर्जी है 2h न्यू, तो ये 1h न्यू, ये 2h न्यू, इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा थर्ड शेल में पहुंच जाएगा। तो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, उतना ही जंप इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू बोहर, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है, वो अपनी मर्जी से अपने आप अपनी शेल को छोड़कर दूसरी शेल में नहीं जा सकता। कब जाएगा? When certain wavelength will strike here, a radiation of certain energy will strike, electron will get energy and move to excited state. अब उस एक्साइटेड स्टेट से वापस भी आएगा वो, तो जितनी एनर्जी लेकर वो हायर वाली शेल में गया था, जब वो वापस आएगा उतनी ही एनर्जी वो ऐसे एमिट कर देगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को अगर मैं यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट से बताऊं आपको, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहां पे था और ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये ले ली मैंने थर्ड। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, कितनी एनर्जी लेकर गया? h न्यू। ठीक है, यहां से यहां आएगा तो उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा। अगर यहां से थर्ड में गया तो कितनी लेके गया? 2h न्यू। और जब यहां से वापस आएगा तो एमिट भी कितनी करेगा? 2h न्यू। तो इस तरीके से ये स्टेट है ग्राउंड स्टेट, ये होगी एक्साइटेड स्टेट और ये भी क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट। तो डेल्टा E किसके बराबर होगा? हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट। तो इस तरीके से इसका जो थर्ड रूल था, थर्ड पॉइंट था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए, कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने घर में रहते हैं, अपनी अपनी शेल में रहते हैं, until और unless radiation of certain energy strikes on it। जैसे ही रेडिएशन आएगी, इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, अपना घर छोड़कर वो हायर स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ देयर जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और इन लाइंस को, ये जो शेल्स हैं अलग अलग, हमने इनको नाम दिया है, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी अगर आ जाती है तो M के बाद O शेल, इसकी एनर्जी होगी E5। तो इस तरीके से अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ओके, एनर्जी फिक्स हो गई। फिक्स मतलब क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड है, एनर्जी पैकेट्स में आती है। ये EH न्यू, ये कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? दिस इज प्लैंक्स थ्योरी कि E इज इक्वल टू NH न्यू। फर्स्ट शेल है तो 1, सेकेंड शेल है तो 2h न्यू, मैंने यहां पे लिखा है पहले से। तो ये कहां से आया? इट वॉज फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी। तो बोहर का मॉडल इट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब बोहर ने कहा ये शेल्स तो फिक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट उसने ये बोला दैट रेडियस एंड एनर्जी इज फिक्स्ड। और आपने देख भी लिया, फर्स्ट वाले की एनर्जी E इक्वल टू 1h न्यू, सेकेंड वाले की एनर्जी E इज इक्वल टू 2h न्यू, थर्ड वाले की 3h न्यू, इस तरीके से। तो अगले पॉइंट में ये कहता है लाइक फिक्स्ड एनर्जी दे हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम or that is MVR, this is angular momentum, it is NH upon 2 pi, NH upon 2 pi। अब देखिए इसका मतलब क्या है? तो like energy means their angular momentum is also quantized, fixed है, quantized है मतलब fixed है। N is equal to 1। अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में रहना है तो उसका
एंगुलर मोमेंटम MVR मीन्स एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, n की जगह आ गया 1 h अपॉन 2 पाई और h अपॉन 2 पाई, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन सेकेंड शेल MVR एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी h अपॉन पाई। For third shell, angular momentum will be 3/2 h upon pi. तो ये आ गया, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3/2 h upon pi और it is 1.5 h upon pi. And for n it equal to 4, जब हम फोर्थ शेल की बात करें it is 4h upon 2 pi, 2 2 are 4, तो ये आ गया 2h upon pi. तो अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस रूल को फॉलो करता है, देन इट विल बी अलाउड टू स्टैंड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, रिस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ। तो यहां से पता चल जाता है दैट दे आर हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, दे आर हैविंग फिक्स्ड रेडियस एंड ऑल्सो दे आर हैविंग फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो इस तरीके से ये थे मेन पॉइंट्स बोहर्स मॉडल के, that electrons are revolving around the nucleus in circular path having fixed radius and fixed energy. Okay. इलेक्ट्रॉन की उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम बोल देते हैं स्टेशनरी पाथ। जिस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। अब एक चीज देखिए, स्टेशनरी का होता है फिक्स्ड, मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेट स्टेशनरी है, स्टेट स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स नॉट स्टेशनरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं। फिक्स क्या है, ये पाथ, ये ट्रैक अपनी जगह पे है। जैसे आप रेस का ट्रैक देखते हो ना, एथलीट ऊपर भागते रहते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पाथ पूरे स्टेडियम में एज इट इज ही रहता है, अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। तो ये पाथ फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। फिर फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, आप इसको शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इस रूल को फॉलो करेगा, n इज इक्वल टू 1, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम इट इज होल नंबर मल्टीपल n ऑफ h अपॉन 2 पाई। सेकेंड शेल के लिए ये वैल्यू आनी चाहिए, थर्ड शेल के लिए ये वैल्यू आनी चाहिए और फोर्थ शेल के लिए, ओके। नाउ इन बोहर्स मॉडल देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और हम इनको क्या नाम देकर आए, शेल। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हर शेल का फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल? इज द नंबर सेम और डिफरेंट? यस, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट शेल्स। किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स, इट इज गिवन बाय 2n square. It's a formula. It is given by 2n square. Okay. Now, let us n and here number of electrons. n is equal to 1 means कौन सी शेल आ गई, k शेल। तो इसके लिए किसके बराबर होगा, 2 into 1 square, कितने आ गए 2। l शेल means n कितना हो गया 2, तो it will be 2 into 2 square, 2 2s are 4, 4 2s are 8। m शेल n is equal to 3, देखो m के लिए थर्ड शेल है ना ये, तो 2 into 3 square, 3 3s are 9, 9 2s are 18। n के अंदर 4, तो 2 into 4 square, 4 4s are 16, 16 2s are 32। तो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
लेट इट बी 16, 17, 18 और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने रहेंगे? 32. Now this is the maximum number which an atom can accommodate in a particular shell, right? तो इस तरीके से बोहर का मॉडल हमें डिफरेंट जानकारियां देता है रिगार्डिंग इट्स रेडियस, एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें रिजाइड कर सकते हैं और कितने वेज के साथ वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जंप कर सकते हैं. ओके, लेट अस रिवाइज दिस ऑल विद दिस एनिमेशन. Atomic structure on the basis of Bohr's postulates. ओके, अब देखिए रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत कर दिया गया, जैसा मैंने आपको लेक्चर में बताया था, क्योंकि जब भी कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो इट एमिट्स एनर्जी इन सर्टेन फॉर्म. तो ये देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है ब्लू कलर में और रेड कलर में इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है. बट according to classical theory it will emit energy in certain form. तो यहाँ पे in the form of radiation it is emitting energy कम होती जाएगी and ultimately it will fall in the nucleus और atom vanish हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, देखो ये इसको अलग अलग स्टेजेस में देखिए. अब ये इलेक्ट्रॉन अराउंड घूम रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता, एटम्स आर टू स्टेबल. तो क्या रीज़न रहा होगा? अगर रदरफोर्ड का मॉडल है तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए ख़त्म हो जाना चाहिए. तो इस चीज़ को नील बोहर, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ही इज़ नील बोहर. नील्स बोहर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. उसने क्या पॉइंट्स दिए? ही सेड only certain special orbits called discrete orbitals of electrons are allowed inside the atom. While revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. और आपने इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से वीडियो लेक्चर के अंदर सुना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हम कोई भी ऑर्बिट बना देंगे. पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम प्रॉपर होना चाहिए. अब देखिए जिस तरीके से ये सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में सन है और बहुत सारे प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो इसके अराउंड मूव कर रहे हैं. ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ प्लैनेट्स हैं, बट आप सभी को पता है एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट एंड सिमिलर इज़ द केस विद एटम. न्यूक्लियस इज़ लाइक सन एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर शेल, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं. तो यहाँ देखिए वाइट कलर में शेल है या एनर्जी लेवल हम बोल देते हैं. अब एनर्जी लेवल हम किसको कहेंगे? नील बोहर ने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिटल्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में है वो ना तो जंप करके हाई शेल में जाएगा, ना ही एनर्जी एमिट करेगा. तो ईच शेल हैज़ गॉट अ डिफाइंड एनर्जी लेवल. उस लेवल की एनर्जी अलग है, उनका नाम अलग है. और अगर आप इन शेल्स के नाम की बात करें, आप देख चुके हैं फर्स्ट शेल को बोला जाता है के, देन एल, एम, एन. अगर इसके बाद और होती तो इट वुड बी गिवन द नेम ओ एंड सो ऑन. अब नंबर देखें शेल का, के का मतलब या फर्स्ट शेल, ठीक है, एल मीन्स सेकेंड शेल, एम मीन्स थर्ड एंड एन मीन्स फोर्थ शेल. तो इस तरीके से हर शेल की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है, अपना रेडियस है. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बना फिर? अब एटम के अंदर प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. एंड इन 1932 जेम्स चैडविक क्या डिस्कवर किया था इसने? आप अच्छे से जानते हैं, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स. अब मास ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और इसका चार्ज नहीं होता, मास इसका है प्रोटॉन के बराबर और उसका नाम है न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. तो फिर
अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोहर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियस के अंदर हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन दैट इज इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, और क्या ये रैंडमली पड़े होते हैं या स्कैटर्ड होते हैं, ये आप इस वीडियो में देख चुके हैं। इस तरीके से बोहर ने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एटॉमिक मॉडल नए सिरे से दिया। बट प्रॉब्लम यही थी कि ये वाला जो मॉडल था एवरी एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। बट इस पर्टिकुलर मॉडल ने जो पॉइंट्स हमारे पास उसने दिए दे वर क्वाइट एनफ टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एज इट वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक। देन इट वाज एबल टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, क्योंकि एनर्जी क्या थी? फिक्स्ड। उसने कहा था फिक्स्ड होती है, कितनी होती है हमने कैलकुलेट करी, इसी ने बोहर ने ही कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया। मैं बताती हूं इसका। इट वाज एबल टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एवरी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी इसकी एप्लीकेशंस में आ जाता है। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी? इट वाज En इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के साथ दिस इज किलो जाउल पर मोल, आप किसी की भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते थे। अगर n इक्वल टू फर्स्ट शेल के लिए E1 इट विल बी -1312 अपॉन 1 स्क्वायर, -1312 किलो जाउल पर मोल। For second shell it was E2 -1312 upon 2 square. तो it was -1312 upon 2 to the 4. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, -328 किलो जूल पर मोल। Similarly for n is equal to 3, it will be E3 -1312 upon 3 square. It was -1312, 3 3 is 9. It was divided by 9. For n equal to 4, it was E4 -1312 upon 4 square. तो 1312 upon 4 4 is 16. तो आप इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोहर्स मॉडल हेल्प्ड टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एवरी शेल प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, राइट। तो ये कई बार पेपर में आता है कि हाइड्रोजन की थर्ड शेल की एनर्जी निकालिए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला En इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। n बताता है शेल का नंबर क्या है, शेल नंबर क्या है। ओके, अब एनर्जी के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की, उसमें 5 तरह की सीरीज आ रही थी। अरे भाई ये सीरीज क्यों आ गई, कहां से आ गई? रदरफोर्ड का मॉडल तो बता ही नहीं पा रहा कि ये सीरीज क्यों आई, जबकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उससे पहले देखिए, ये एक स्टेयर है, सबने देखी हुई ऐसी वाली सीढ़ियां अपने घर में, ठीक है, बैम्बू की सीढ़ी। अब एक स्टेप यहां, जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हो एक स्टेप यहां होता है, दूसरा यहां होता है, फिर पहले वाला यहां रखेंगे, दूसरे वाला यहां आएगा। कभी ऐसा होता है कि आपका पैर आपने हवा में रख दिया हो? It never happens. उसी तरीके से this is first shell, second shell, third shell, fourth shell and fifth shell. आप इतना गैप क्रॉस कर सकते हैं तो आप फर्स्ट से सेकंड पे रखेंगे। छोटा बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, ठीक है। ओके, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप यहां से यहां जंप कर सकते हैं, आप 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ सकते हो। कुछ बच्चे करते हैं ऐसी शरारतें भी, मतलब आपकी कैपेबिलिटी है तो आप यहां से डायरेक्ट 2 जंप भी कर जाओगे, राइट। क्योंकि फिर कैपेबिलिटी की बात आ गई ना, तो वहां उधर एनर्जी की बात होती है। ओके, अब जब चलो यहां पहुंच गए, वापस आने का तरीका भी क्या है? हो सकता है आप एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं, बीच में कहीं डबल जंप कर लिया हो, या यहां से डबल जंप मार दिया हो। इसी तरह किसी भी एटम के अंदर, ये फर्स्ट शेल ले ली मैंने, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक है। ये फर्स्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, आप जितनी मर्जी बना लीजिए,
इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके पहुंच गया यहां पे, तो इसका डेल्टा ई किसके बराबर होगा? इट विल बी E5 माइनस E1, ऐसे ही होगा ना। डेल्टा ई किसके बराबर होगा? 5h न्यू माइनस h न्यू, मीन्स उसको 4h न्यू की एनर्जी मिली और यो फर्स्ट से फिफ्थ शेल में जंप कर गया। ओके, अब मैं इसको थोड़ा इधर से हटा देती हूं। अब इसी तरीके से यहां से जितनी भी एनर्जी लेकर ये गया, ये टोटल गैप कितना हुआ? 1 2 3 4, एक एच न्यू, 2 3 4, देखो 4 ही आ रहे हैं। 4h न्यू एनर्जी लेकर ये ऊपर चला गया। ओके, अब वापिस आने के तरीके देखो कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात, हो सकता है ये पूरा जंप ऐसे कर जाए, तो कितना जंप लगाया इसने? देखिए 4h न्यू का। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहां से पहले इसने एक स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप और लास्ट में पहुंचा। 4 तरीकों से आया। तो यहां देखो 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, हो गए 4h न्यू। ये सेकंड उसका तरीका हो गया, ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। ओके, फिर एक तरीका और लगाया इसने, फर्स्ट वाले को डबल जंप किया, आगे ये सिंगल सिंगल आया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पे 2h न्यू, यहां पे h न्यू, यहां पे h न्यू, अगेन टोटल 4। ओके, अब ये हो सकता है यहां इसने 1 स्टेप लिया, यहां पे 2 लिए, यहां 1 ले लिया, h न्यू, 2h न्यू, h न्यू। तो किसी भी तरीके से आए, यहां डबल किया, यहां डबल किया, ये दूसरा तरीका था, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा तरीका। तो ये भी 2h न्यू, ये भी 2h न्यू। तो ऐसे जितने भी आप लोग बना सकते हो अलग अलग तरीके, मींस इलेक्ट्रॉन ऊपर गया जरूरी नहीं है वो सीधा ही जंप नीचे करेगा, उसका अपना तरीका है कि वो स्टेप बाय स्टेप आ सकता है, वो डबल जंप कर सकता है, वो एक सिंगल, 2 डबल, एक सिंगल कर सकता है। नंबर ऑफ, उसके पास बहुत से वेज हैं, इट हैज मेनी वेज, मेनी डिफरेंट पाथ्स टू कम डाउन। कहां, किस जगह पहुंचेगा वो? जो सबसे लोएस्ट था उसकी फर्स्ट शेल, इट वॉज इट्स स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और पहुंचा कहां? सबसे ऊपर, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी लेकर गया, जब वो वापस आएगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, तो वापस आने के भी उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 5 मेथड्स तो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसके अलावा आपके माइंड में इससे भी ज्यादा आ रहे होंगे। तो ये चीज तो बहुत बता चुका है कि ऐसा है भाई, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो वेवलेंथ, जिस एनर्जी की रेडिएशन स्ट्राइक करेगी, उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़कर कहां पहुंचा, और फिर अपने घर वो वापस भी आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया, बिकॉज इट वॉज द बेस। ध्यान से देखिए, इट वॉज द बेस फॉर कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा इसको। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर लेट्स फाइंड आउट। अब मैं यहां से इधर से बना लेती हूं, मुझे पूरा बोर्ड यूज करना पड़ेगा। एक फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 9 आर इनफ। ठीक है, अब देखो, दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कहां तक? n इंफिनिटी तक। ठीक है, नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं अब 9th से ही स्टार्ट कर रही हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा और कहां आके टिकेगा? n1 पे। अगर ये 8 से स्टार्ट करेगा
where it will reside again at 1. If it jumps from 7th shell, it will again reside in 1. From 6th, one, from 5th, 1, 4th, 1, 3, 1, 2, 1. तो सबसे पहले जो सीरीज है इट इज लेमन सीरीज. ठीक है, तो लेमन सीरीज में क्या हुआ, n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 1. ठीक है, n2 आया इंफिनिटी और n1 क्या आया 1. आपने रिडबर्ग फॉर्मूलाज में देखा था. तो n इंफिनिटी से लेकर 1 पे आगे ये टिक जाएगा. ओके, अब देखो सेकंड हमारे पास था बाल्मर सीरीज. तो बाल्मर सीरीज में इंफिनिटी से टिकेगा आगे 2 पे. 1 from 8, from 7, from 6, from 5, 4, 2. तो ये रही बाल्मर सीरीज. और इसमें क्या हुआ, n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 2. अब थर्ड नंबर के ऊपर है हमारे पास पैशन. तो पैशन के अंदर हायर टू थर्ड से ऊपर जितनी भी होंगी उससे हम इसको, ये रहा पैशन सीरीज. तो पैशन सीरीज के अंदर n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 3. ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर n होगा 4. तो फ्रॉम हायर टू n इक्वल टू 4. 8 से 4, 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4. तो दिस इज ब्रैकेट. तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर n इंफिनिटी टू n इक्वल टू 4. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन एंड दैट इज फॉन्ट सीरीज. दिस इज फॉन्ट सीरीज. तो इसमें n इंफिनिटी टू n equal to 5. This is not 2, this is infinity. n infinity to n 5. ठीक है, अब बोहर ने देख लीजिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया. उसके हिसाब से ये रही सीरीज, ये रहा n1 और ये रहा n2. सीरीज सबसे पहले हमारे पास है लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड. लेमन के लिए n1 वो कहां आके रुका, 1 पे. बाल्मर के लिए 2 पे, पैशन के लिए 3 पे, ब्रैकेट के लिए 4 पे और फंड के लिए 5th पे. और हायर का था, ये 1 था ना, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. 2 के लिए 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी. 3 के बाद 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी. 4 है तो कहां से स्टार्ट करेगा, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी. 5th है 6, 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी. तो इस तरीके से बोहर एक्सप्लेन्ड the various bands line spectra of hydrogen atom, जिसको रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर, जो मॉडल था एटम का, that was not able to explain that. तो इस तरीके से बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हटाकर हाइड्रोजन एटम का अपना मॉडल दिया. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, why he just worked on this only atomic structure of hydrogen atom? Because hydrogen spectra was the main focus for Bohr's study. ठीक है, और ड्यूल नेचर के ऊपर तो बात चल ही रही थी. तो बहुत से इसके इस मॉडल से, बोहर के इस मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस which were
just arise due to particle and wave nature of light. तो उस तरीके से बोहर मॉडल इट वाज सक्सेसफुली explained. It successfully explained every spectral line of hydrogen spectra. बने रहिए हमारे साथ हमारे आने वाले वीडियोस के लिए, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें.